As you know, we were doing kinematics and we have started in yesterday's lecture. So let's have a quick recap of whatever we have done in our last class. As you know, we have started the kinematics. We have started our lecture with the mechanics, then branches of mechanics, statics, kinematics and dynamics we have studied. Then we have studied about the what is an object, then position of the object, that means, or we can say the state of the object, whether the object is at rest or in motion. Then we have studied about the two-dimensional motion, one-dimensional motion and three-dimensional motion. That means we have studied about the motion, how many types of motions we have, 1D, 2D and 3D. And then we have studied about the frame of reference we have studied, and in the last I have told you, under the kinematics we will cover the concept of terms motion in straight line, projectile and relative motion. Up to now we have studied. Today we will start with our lecture with the concept of terms. What are terms? We will explain one by one terms. As I told you, without the concept of terms, you will not be able to cover these three concepts. So we have to understand the concept of terms very, very carefully. So let's start our today's lecture. As I have told you, some of the terms are that we will discuss in kinematics related to the these where we use the terms in motion in straight line, projectile and relative velocity. The terms will be first distance and displacement, second is speed and velocity, third is acceleration, and fourth term that we will cover in our lecture is equations of motion for uniform acceleration. So these are the terms that we will cover under our today's lecture. So first discuss with distance and displacement. Distance and displacement. Distance and displacement को understand करने के लिए let us take one example. Suppose a person starts his journey from point A and by covering a distance of 2 kilometers, he reaches at position B. Then he takes a turn and moves in this direction and reaches up to a point C by covering a distance of 3 kilometers. First we will discuss the distance. एक पर्सन था जिसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पे गया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक, देन बी से सी पे गया बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स. तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि इस पर्सन ने जो टोटल पाथ है वो कितना ट्रेवल किया, जो टोटल पाथ की जो लेंथ है उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस. कि ए से सी तक जो भी पाथ इसने ट्रैवल किया है, जो भी पाथ है वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा. सो पहले वो ए से बी पे गया, सो ए बी प्लस बी सी, ये हो गया हमारा टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय दिस पर्सन. सो दिस टोटल पाथ लेंथ is known as distance. So this is the distance. Now we come to the displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस होगा? वैसे तो आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है, उसी को हमें समझना है. जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो हम ये देखेंगे कि सपोज ये पर्सन ए से गया बी पे गया, ठीक है, फिर वो बी से सी पे गया, तो ये समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें 2 पॉइंट्स शुरू में ही क्या कर देने हैं, लोकेट कर देने हैं कि
एक जो इनिशियल पॉइंट है उसने चलना कहाँ से शुरू किया और दूसरा वो कहाँ तक गया। देखो डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है वो आपको बोले कि उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, लेकिन उसमें से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल किया हो कि वो पहले ए से बी पे गया हो, फिर बी से सी पे गया हो और फिर से सी से वापस 1 किलोमीटर आ गया हो। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए शुरू में ही ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ गया। दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था। सपोज इनिशियल पॉइंट उसने यहाँ से चलना शुरू किया तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा ए बी या बी सी, ए बी प्लस बी सी नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द जो इनिशियल पॉइंट था वो और जो फाइनल पॉइंट है वो। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम फॉलो करेंगे और वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए से बी और बी से सी वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो वो शॉर्टेस्ट है और वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो यहाँ से ए से बी, बी से सी, ये हो गई टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 points and these 2 points are this initial point and the final point। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। नाउ सेकेंड थिंग जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़नी है वो ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है शॉर्टेस्ट पाथ और आपका जो डिस्टेंस है वो है टोटल पाथ लेंथ। तो अब हमें जो दूसरा मेन डिफरेंस पढ़ना है वो ये है कि क्या, इसको लिख देती हूँ ऊपर, टोटल पाथ लेंथ। अब जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है कि जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स अभी इस ट्रायंगल में हमने देखा ट्रायंगल था, पाथ था, ये था ए बी और सी, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी, ये हमारा टोटल डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ए सी है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का। तो क्या जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा? दैट मीन्स क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? आप सोचिए, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, क्या ऐसा कोई पाथ है या ऐसी कोई डायरेक्शन हम ले जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो? तो यस, अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, अगर कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में जो टोटल पाथ होगा यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो यही होगा आपका टोटल पाथ, मतलब यही हो गया डिस्टेंस। और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उस केस में आपका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ चुके हो कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देंगी, लेकिन जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज होती हैं जो आपको मैग्नीट्यूड भी बताएंगी और ये भी बताएंगी कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में है। सपोज अगर हम यहाँ पे अपना ये बना लेते हैं डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, कि आप कौन से डायरेक्शन में गए हो। पहले सपोज यू हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन ईस्ट, देन यू हैव कवर्ड 3 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस इन नॉर्थ। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो आपका टोटल पाथ लेंथ होगा। तो इसी तरीके से क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन के
अंदर जो आपका डिस्टेंस होता है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है. सो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. अब हमने एक चीज देख ली कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है. अब हमें ये देखना है कि जो डिस्टेंस है क्या वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से. डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से. तो ये भी हमने देख लिया कि यस, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने एक केस किया था, ये तो था ए 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट मीन्स टोटल 5 किलोमीटर वाज द पाथ लेंथ और वी कैन से डिस्टेंस. बट एसी हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था जो कि लेस था देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अब हमने एक चीज देख ली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से. नेक्स्ट कम्स कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो इक्वल टू 0 हो सकता है. तो वो भी हो सकता है कि सपोज आप ए से बी पे गए, कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी और वापस वो बी से यहीं पे आ गया ए के ऊपर. तो इनिशियल पोजीशन भी ए ही है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में 0. तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन द डिस्टेंस. So this is all about the distance and displacement. One more thing, distance जो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी है. It will only tell you how much of distance you have traveled. कौन से डायरेक्शन में किया, नॉर्थ गए, साउथ गए, डजंट मैटर. हमें वो सब से कोई लेना देना नहीं है. बट डिस्प्लेसमेंट वो पक्का आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी. ए से बी पे गया, फिर वापस ए से बी पे आया, कौन सी डायरेक्शन चेंज की, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा. तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल हुआ है, डायरेक्शन के विदाउट हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं. सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आवर नेक्स्ट टर्म इज स्पीड एंड वेलोसिटी. सो आई विल रिप्लेस next is speed and velocity. You know, speed is होगा आपका, you know the formula for speed. Speed is how much of distance is traveled in how much of time. That means distance traveled per unit time is known as speed. यही बोलते हैं हम स्पीड कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, इन दोनों का रेशियो विल गिव यू स्पीड. इन द सेम वे वेलोसिटी, जैसे हमने बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. बिकॉज जो वेलोसिटी होगी दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time. Velocity is distance traveled per unit time is velocity. Speed is distance traveled per unit time. So जैसे हमने distance और displacement की बात की थी, कुछ सिमिलर है आपके speed और velocity. Speed is distance over time, velocity is displacement over time. Speed आपके पास स्केलर है, velocity आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. इन द सेम वे जो स्पीड है कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी. जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है वेलोसिटी. तो जैसे डिस्प्लेसमेंट जो था वो वेलोसिटी के से ग्रेटर देन इक्वल टू था, इन द सेम वे जो स्पीड है वो भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है वेलोसिटी के. और वेलोसिटी आपकी हो सकती है 0. कब? when your displacement becomes 0, in that case velocity also becomes 0.
So this was about the speed and velocity. Now next come to the our term that is given as acceleration. Acceleration. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से. सपोज हमने क्या किया, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये एक व्हीकल है, एक गाड़ी है सपोज, वो v वेलोसिटी से u या इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर रही है, मूव कर रही है. सडनली आपने क्या किया, कुछ डिस्टेंस बाद, या फिर ऐसे ले लेते हैं, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो इसने टाइम लिया वो t टाइम लिया. एंड t टाइम के बाद जब इसने चलना शुरू किया, इनिशियली दिस व्हीकल वाज मूविंग विद वेलोसिटी u. आफ्टर टाइम t it has reached here and now its velocity has been changed from u to v. अब पहले वेलोसिटी थी u, अब वेलोसिटी है v. कितने टाइम में, t टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है u से v तक. तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स how much of velocity is changed in how much of time. अब ये change in velocity क्या है? Change हम कैसे निकाल सकते हैं कि किसी चीज की फाइनल वैल्यू क्या थी, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही होगा change in velocity. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? आफ्टर टाइम t के बाद दिस व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v. इनिशियली इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी u. तो चेंज इन वेलोसिटी को वी कैन राइट v minus u over t, and this is equal to the acceleration. Acceleration is rate of change of velocity. जहाँ पे भी rate आ जाए, that means in denominator there will be time. So change in velocity को we can write v minus u over t. And क्योंकि आपके पास वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी. तो ये तो हो गई तीनों टर्म्स हमने एक्सप्लेन कर ली है. नाउ वी विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स. टाइप्स हैं आपके पास. वी विल डिस्कस हियर एवरेज, एंड इंस्टेंटेनियस. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. पहले हम स्पीड के लिए डिस्कस करेंगे, देन हम वेलोसिटी, एंड देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को हम लिखेंगे VAVG, V एवरेज. क्या होगा ये एवरेज स्पीड, क्या होगा? अब देखो, सपोज आप एक पर्सन है, वो सुबह सुबह घर से निकला ऑफिस के लिए. इनिशियली ही हैज कवर्ड सम डिस्टेंस विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर. बिकॉज सपोज रश कम था, स्पीड ज्यादा थी, देन उसने कुछ डिस्टेंस अगेन ट्रैवल किया, बिकॉज रश बढ़ गया या फिर ब्रेकर्स मिल गए, तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई 40 किलोमीटर पर आवर.
अगेन थोड़ा सा क्लियर रोड मिल गया, देन अगेन उसकी जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर, और उसने जो ये घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस था वो 30 मिनट्स में ट्रेवल कर लिया। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। अब हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, हम ये देखेंगे कि 30 मिनट्स में वो घर से ऑफिस पहुंच गया, तो इस 30 मिनट्स में जो कि टोटल टाइम उसने लिया यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी थी उसको कवर करने के लिए, तो ये देखेंगे कि इस टोटल टाइम के अंदर उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज टोटल डिस्टेंस, और ये हो गया टोटल टाइम। हम बीच का कैलकुलेशन नहीं देखेंगे कि कहाँ पे उसकी स्पीड 70 किलोमीटर थी, कहाँ पे 40 थी, और कितना डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। हम सिर्फ ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम कितना लिया। तो आई होप समझ गए होंगे। वी एवरेज, मान लो हम कंप्लीट जर्नी के लिए एक एवरेज स्पीड लेना चाहें कि जो 30 मिनट्स में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया घर से ऑफिस तक का, वहां के लिए आपसे पूछा जाए कि उस आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप सिंपली बताओगे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और इसको हम डिनोट करेंगे वी एवरेज से। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब हम इंस्टेंटेनियस का मतलब फिजिक्स में हम बताते हैं, पहले तो इंस्टेंटेनियस समझते हैं होता क्या है। जब आप ये कोई भी जर्नी ट्रैवल कर रहे हो, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में जब आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, तो आपको पता है वो पर्टिकुलर मोमेंट फिजिक्स के टर्म में बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा इतने स्मॉल टाइम में। तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्मॉल टाइम, और इतना टाइम कि वो जो टाइम है वो जीरो तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखेंगे कैसे, मान लेते हैं इट हैज ट्रेवल्ड अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस इन वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा टी है दैट इज वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ये डेल्टा टी है दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट जीरो बट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो। उस केस में जो ये आपका डेल्टा एस और डेल्टा टी है वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके डेरिवेशन से, दैट इज डेल्टा डी एस बाई डी टी। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़